हम कदम हम ज़हन हम नवा दोस्तों, अपनी मिल्लत के हम कहकशां दोस्तों, ढूंढ लेंगे हम ऐसा जहां दोस्तों, होगी राहे अमल पुरअमा दोस्तों। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Respected parents of Mumbai and Maharashtra region, Assalamu alaikum wa rahmatullah. There were certain announcements. Number one, our beloved Sheikh Muqim Faizi Rahimahullah alayh, may Allah shower blessing on him. He was the most instrumental in Iqra development. He was very strict for hudud. We always thankful for him and praying Allah for his easy and successful akhirah. He passed away last week. Secondly, mother of Aslam Khan, our Aslam Bhai who knows in head office. His mother was passed away on 10th of August at Millat Nagar. Third one was Jamai Saab. He passed away on 12th of August. May Allah forgive all of them and give a paradise. Second announcement was regarding your queries of marks of EPS English conversation was now not counted in the result. Yeah, it is correct that some marks, some papers are not counted, some papers are missing, and most of the parents who have not submitted the EPS for the first assessment, so inshallah for the second assessment we will count the EPS conversation and all the topics. So for the first, give me excuse inshallah, but for the second it will not happen. Third point was parents are asking Arabic language book was not received for standard 3rd and 4th and so on. Yeah, it is correct that Arabic language book was supplied from Chennai, but due to the lockdown this book was not available, but inshallah we are printing now. So inshallah with the book number 3 we give the Arabic book for standard 3rd and 4th. I think some parents did not get of first standard also. Inshallah we give them. Point number 4, parents who drop the children due to the lockdown, what will be the future? See, the parent who have taken the drop, and according to them dropping 1 year for the student is okay, but for me as a very sincere advice, please do istikhara. आप बच्चों को जो ड्रॉप आउट करा रहे हैं, बच्चों को 1 साल बिठा रहे हैं, उससे उनकी जो तालीमी तरक्की थी, जो उनका जो मेयार था, उसमें वो सिर्फ 1 साल पीछे नहीं रह जाएंगे बल्कि कई साल पीछे हो जाएंगे। एक कंपटीशन बच्चों में होता है, एक इंथुजियाज्म होता है, तो वो बच्चों में से ख़त्म हो जाएगा। तो आप बच्चों को प्लीज़ बच्चों को ड्रॉप आउट ना कराइए। जो मसाइल हैं, मैंने लास्ट टाइम भी कहा कि अभी 2 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन अभी भी हम मेहनत करेंगे तो उन बच्चों को कवर करा लेंगे पोर्शन को। आपसे गुजारिश है कि इसके बारे में आप इस्तिखारा करें, ड्रॉप आउट ना लें, गांव में मत बैठे रहें। ट्रेनिंग चालू हो चुकी है, किसी भी तरीके से बच्चों को स्कूल में आएँ। बहुत सारे वालिदैन अपने वतन से भी PDF के ज़रिए ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन किए हुए हैं। मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इतना कंसर्न है उनको। बच्चों को ड्रॉप आउट मत लीजिए। पॉइंट नंबर 5, व्हाट अबाउट द न्यू एकेडमिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट की जो एकेडमिक एजुकेशन पॉलिसी आई हुई है, वो वाकई बड़ी तफसील तलब, जिसमें बहस होना चाहिए। लेकिन जो मेजर चीज़ ये है कि लोग सिर्फ उसकी ऊपरी चीज़ों पर बहस कर रहे हैं कि उसकी स्कीम 5+3+3+4 जो है, तो ये तमाम चीज़ें अहम नहीं हैं। जिस चीज़ पर कंसर्न है मेरा वो है उसके तालीमी क्वालिटी, उसके अंदर जो बुक दी गई है उस पर हम बहस नहीं कर रहे हैं। आप अगर NCERT की बुक देखेंगे तो वो जो है नई बुक जो है वो इंतहाई, उसमें जो है चीज़ें जो दाखिल की गई हैं वो शिरकिया कॉन्सेप्ट है, और ये उम्मीद भी की जा रही थी कि देखिए जो कुफ्र है, जो मुआहिदीन नहीं है, दे आर बाउंड टू डू एनीथिंग, ऑल दिस थिंग, they are inclusive, they are bring the subjects which are full of shirk and kufr, but inshallah Allah blessed us with Islam, so we never indulge with that thing, we will never bow down, because we are having Iqra Islamic School and Maktab, so we will avoid all that things. But these policies are very bad. Some good things are there in the policy regarding the practical solution, practical teaching, like the student have to visit to some nearby workshops and all that for carpentry and all. But in Mumbai it is very difficult. That is why we had already have a small projects of robotics and mechanics.
सो इंशाल्लाह वी कवर बेटर देन व्हाट गवर्नमेंट हैव प्लान्ड। सो न्यू पॉलिसी के वीडियोस आप देखिए जो है उसके स्ट्रक्चर पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन कंटेंट जो है जब तक कि किताबें आपके हाथ में नहीं आएगी आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। किताबों में बेइंतहा तब्दीली की गई है। पॉइंट नंबर 6, पेरेंट्स का कंसर्न ये है कि हॉलीडेज जो है यानी ऑनलाइन क्लास में जो हॉलीडेज डिक्लेयर की गई हैं सर्कुलर में फर्स्ट टर्म के एग्जाम के बाद और दिसंबर के 25 दिसंबर की, व्हाट अबाउट दैट हॉलीडेज? सी ऑनलाइन क्लास में हमारे पोर्शन को कवर करने के लिए इफ वी नीड द टाइम हॉलीडे विल बी कैंसल, कोई हॉलीडे नहीं रहेगी। और अगर इफ योर पोर्शन इज ऑलरेडी कवर्ड या दोज वी जॉइन लेट on for those we will revise the portion for 8 9 10 there will be no holiday। 8 9 10 की जो हॉलीडेज है वो कैंसिल करेंगे हम ऑनलाइन में। और इंशाल्लाह इफ द लॉकडाउन इज ओवर, लॉकडाउन अगर ख़त्म हो जाता है तब भी कोई वैकेशन नहीं होगी, कोई छुट्टियां नहीं होंगी, चाहे इट इज़ इन द मंथ ऑफ नवंबर, दिवाली हॉलीडेज है, वैकेशन है, दिसंबर है, कोई छुट्टियां बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। वॉट एवर द पोर्शन वी लेफ्ट बिहाइंड, स्कूल शुरू होते ही हम इसको शुरू करेंगे और पोर्शन काफ़ी पेंडिंग जो रह गए हैं वो इंशाल्लाह हम इसको लॉकडाउन के फ़ौरन बाद शुरू करेंगे। जी हाँ, लॉकडाउन जैसे ही ख़त्म होगा पहले तो ये कि वी विल गो फॉर पिकनिक, श्योर वी गो फॉर पिकनिक दैट वी लेफ्ट लास्ट ईयर, देन वी विल हैव स्पोर्ट्स इमीडिएटली आफ्टर द लॉकडाउन इज ओवर, देन वी विल गो वेरी strongly for the academic and Arabic, many Arabic portion is left। तो छुट्टी के बारे में, कोई छुट्टी के बारे में आप तस्वुर भी ना करें। इवन 10th स्टैंडर्ड का संडे को भी वर्किंग है, 10th स्टैंडर्ड जो है उनको संडे को भी क्लासेस रहेंगी इंशाल्लाह। अगर खुदा ना खास्ता लॉकडाउन नहीं खुला तो क्या करें? तो लॉकडाउन ना खुलने की शक्ल में तमाम क्लासेस वैसे ही चलेंगी, लेकिन 10th स्टैंडर्ड की लॉकडाउन ना खुलने के बावजूद भी उसकी क्लासेस होंगी 1 सितंबर से या 10 सितंबर से। मेरा इरादा ये है कि हम कुछ ना कुछ का हल निकालें। अब पॉसिबल नहीं है कि हम बैठे रहें, अब उसका क्या तरीका होगा इसके लिए 10th स्टैंडर्ड के पेरेंट की एक जूम मीटिंग ताहिरा में शेड्यूल कर रही है इशरत सर के साथ। या तो हम ऐसा करेंगे कि रे रोड में यानी हेड ऑफिस में हम बच्चों को बुलाएंगे, रे रोड वालों को, और अंधेरी ब्रांच, जरी मरी में कुरला, माहिम, साकिना का, मलाड, इन बच्चों को कंबाइन करेंगे और भिवंडी में, भिवंडी और मुमरा के बच्चों को कंबाइन करेंगे और महाराष्ट्र के बच्चों का महाराष्ट्र में ही होगा, मालेगांव में जैसे हो रहा है। अब यहाँ पर जो टाइमिंग हमारा बहुत जल्दी का होगा क्योंकि लॉकडाउन में, बहरहाल लॉकडाउन है तो उस लिहाज से उसको संभाल के ऐसा करेंगे हम कि बहुत सवेरे से क्लास शुरू करेंगे, मे बी 6:30 और 6:30 to 9:30 और 10 से 3 hours पर डे, दैट इज डेफिनेटली वी आर प्लानिंग। और उसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ऑनलाइन अच्छी ठीक है, लेकिन ये क्या प्रैक्टिकल क्लासेस होंगी और उसके लिए एक हम मीटिंग इंशाल्लाह ले लेंगे। थोड़ा सा आपका कॉपरेशन ज़रूरी है और लास्ट टाइम ने शुरू की थी, आप नहीं आए, लेकिन इंशाल्लाह उसका कुछ ना कुछ लीगल हल निकालेंगे। नंबर 8, नंबर 7 इज ऑनलाइन 2 hours विल बी सफिशिएंट फॉर द स्टूडेंट्स। या ऑनलाइन की जो 2 घंटे की क्लासेस हैं वो सफिशिएंट इसलिए हैं कि नंबर ऑफ डेज, वर्किंग डेज हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा मिला। हमने 1 जून से ही क्लास शुरू की थी, तो हमको बच्चों को ऑनलाइन क्लास से बेजार नहीं करना है। वी कैन नॉट मेक देम अ बर्डन ऑन दैट। 6 hours 5 hours ऑनलाइन में कोई बच्चों पर जा नहीं पाता। ऑनलाइन क्लास 2 घंटा ये रूल भी है और फिजिबल भी है, तो हम इंशाल्लाह 2 लेक्चर करेंगे और उसके जो पोर्शन बाकी रहते हैं उसको जो है प्री रिकॉर्डेड वीडियोस भेज रहे हैं आपको टेलीग्राम में, वो देखिए, या तो फिर ये जो छुट्टियां आ रही हैं उनमें इंशाल्लाह कवर करेंगे। नंबर 8, हॉल ऑफ फेम। दिस एग्जाम डज नॉट शो एनी हॉल ऑफ फेम। हॉल ऑफ फेम मैंने जो बच्चे टॉप कर रहे हैं क्लास में उनका हॉल ऑफ फेम होना चाहिए था, वाकई ये होना चाहिए जो मिस हो गया। इंशाल्लाह जो हमारा रिजल्ट है सेकंड असेसमेंट का, उसमें हम हॉल ऑफ फेम हर ब्रांच में लगाएंगे इंशाल्लाह। ऑल सुपरवाइजर्स प्लीज नोट दैट वी विल अप्लाई। हमारे सेकंड असेसमेंट टेस्ट जो है 1 सितंबर से शुरू होकर 9 सितंबर तक चलेंगे, 1 सितंबर टू 9 सितंबर। और 11 सितंबर को बुक नंबर 3 बॉम्बे वालों को मिलेगी और अरबिक लैंग्वेज की बुक मिलेगी। महाराष्ट्र में बुक नंबर 3 ऑलरेडी हमने दे दी है। 11 अक्टूबर को प्रोजेक्ट नंबर 2 मिलेगा, जेम्स डिस्पेंसर प्रोजेक्ट नंबर 2 मिलेगा और फर्स्ट टर्म एग्जाम हमारा 11 अक्टूबर से शुरू होगा।
So these all the small announcements are there. I am personally telling you that Corona is a big issue, but Allah blessed us with Islam. कोरोना अगर हमारे को मायूस कर देता है तो ये वाकई हम कोरोना से डर गए. मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ने जो आजमाइश दी है, ऐसी आजमाइश अल्लाह को मालूम है. अल्लाह ने तमाम चीज़ों के जानने के बावजूद ये दी है, तो इसका मतलब ये कि अल्लाह इसका हल जानते हैं और जिस दिन अल्लाह चाहेंगे ये बीमारी दूर होगी. आप अगर मायूस हो जाते हैं, अगर हम मायूस हो जाते हैं, उसके असर हमारे बच्चों पे पड़ रहे हैं, हमारी कम्युनिटी पे पड़ रहे हैं, कि हमारी जॉब्स के मामलात हैं, हमारे फाइनेंशियल कंडीशन है, ये अल्लाह को मालूम है. इससे बुरे बुरे दौर से ईमान वाले गुजर चुके हैं और अल्लाह हमको आजमा रहा है. और अल्लाह जब आजमाता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी वुसअत से, हमारी ताकत से ज़्यादा नहीं आजमाता. मायूसी कुफ्र का दरवाज़ा खोलती है. अपने आप पर मायूसी तारी ना होने दें. इंशाल्लाह वी ऑल कम टुगेदर. एनी सॉर्ट ऑफ असिस्टेंस इफ यू फील, कुछ चीज़ें ऐसी जो अगर इकरा की तरफ से अगर हमें साइकोलॉजिकल प्रेशर है बच्चों पे, आप टेंस में, तो आप ज़रूर बात कीजिए. कोई और मसाइल हैं हम उसको हल करेंगे इंशाल्लाह. सो दिस इज़, मैं एक बार फिर आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ कि आपने इम्तिहान में बड़ी हिम्मत के साथ आए और आपने एग्ज़ाम दिया, हत्ता कि केरला से, चेन्नई से और तमाम स्टेट से आपने ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया. दिस इज़ वेरी गुड पॉइंट एंड दिस विल कंटिन्यू. देन इंशाल्लाह विल नॉट लूज एनीथिंग. रिजल्ट लेने आप नहीं पहुंच पाए कुछ ब्रांचेस में, which is a little a matter of concern. So please collect your results so that the students get motivated for that. So may Allah reward you for your presence. Inshallah, 1st September we will have a first semester, second sem examination, and till the time all your queries will be, if you had, please post to your teacher. Jazakallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.